تو میں شروع کرتا ہوں محترمہ شہزاد صاحبہ آپ سے ہی کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو بجٹ پیش کیے جا رہے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کا بجٹ بناتی ہیں، کہ خواتین زیادہ تر اپنے گھروں کے تمام بجٹ بناتی ہیں، کیا پاکستان میں 30,000 روپیہ لینے والا بندہ یا بندی جس کے 3 بچے ہوں، کرائے کا گھر ہو، بچے پڑھتے ہوں، ہمارے جو پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں یا مرکز کے وزیر خزانہ ہیں، ان کا بجٹ بنا کے دیں گے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں جی، جب یہ بجٹ کی بات آتی ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ 30,000 کا یا کسی بھی فیملی کا بجٹ اگر 40,000 بھی ہے اور ایک فیملی کو لے کے چلنا ہر طرح سے، تو یہ 40,000 میں ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے۔ اور جو اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں، مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے چلا رہے ہیں۔ پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی بچے بھی پھر اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے وہ چلا رہے ہیں، نہیں پتہ نہیں، لیکن کوئی معجزہ ہی ہے کہ وہ چلا رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے ابھی آپ نے سبزی کا ذکر کیا، سبزی کتنی مہنگی ہے، کھانے پینے سے لے کے کپڑے سے لے کے ضرورت کی ہر چیز اتنی مہنگی ہے کہ ایک دن گزارنا بہت مشکل ہے۔ اب بہت سوچ بچار کے بعد بھی ہزاروں روپے اگر لگاتے ہیں تو پھر آپ فیملی ایک دن میں سروائیو کرتی ہے، تو ایک مہینہ 40,000 میں گزارنا نہایت مشکل کام ہے۔ اور جو بجٹ بنانے والے ہیں ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ایک عام انسان نے جو ابھی کل ہی وہ بنے پاکستان کے شہری، جی ایک دفعہ جو بجٹ بنانے والے ہیں نا، وہ یہ ضرور سوچا کریں کہ اگر اتنے پیسے ہمارے پاس ہوں تو ہم ایک مہینہ گزار سکتے ہیں باعزت طریقے سے، یا بغیر ٹینشن کے یا پریشانی کے۔ اگر وہ گزار سکتے ہیں تو پھر عام آدمی میں نے گزاری یہ کی ہے، ہمارے وزیر خزانہ پنجاب کے مرکز کے، ان میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ 30,000 میں بجٹ بنا دے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ اگر نہیں آپ یہ کہتے بنا، آپ تو کہیں نا ان کو بنا کے دیں، بنانا چاہیے نا، بنانا چاہیے، اور خود بھی پھر اسی بجٹ میں رہ کے تو اپنا ٹائم اپنا مہینہ گزاریں تو پھر مزے کی بات۔ اچھا محترمہ زیبا صاحب آپ یہ بتائیں، کیونکہ آپ نے تو خود اسمبلی میں رہ کے بجٹ بنائے بھی ہیں، اب بھی بنا رہے ہیں، آپ کے اپوزیشن کے جتنے لوگ ہیں، بڑا شور شرابہ یہ وہ، تو پاکستان میں جس قدر مہنگائی ہے، اور ابھی مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے ان کے منہ میں گھی شکر کے 60,000 روپیہ لینے والا بھی غریب آدمی ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح بات ہے نا، کیونکہ جتنی مہنگائی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک ڈیٹا بنا رہے ہیں پورے پنجاب کا، جس میں 60,000 روپے بھی لینے والے لوگ ہیں نا، ان کو بھی ہم کچھ دیا کریں گے، یعنی ان کے لیے بھی کوئی غربت کا کارڈ وہ لا رہے ہیں، تو یہ اپریشیٹ والی بات ہے۔ سبزیاں انہوں نے سستی کی، کچن آئٹم سستی کی، اور خاص طور پر جو پولیس کے لیے انہوں نے مراعات دی، وہ کہتے پولیس بھی تو ہماری پولیس ہے نا، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بجٹ کا تو گورکھ دھندا ہے، آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں اور آپ کی پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سانا صاحب، آپ نے بہت اچھے موضوع کے اوپر بات کی، اور یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے جس پہ ڈسکشن کرنی چاہیے۔ عوام کو جب تک ریلیف نہیں ملے گا، عوام کو سکون نہیں آئے گا۔ یہ میڈم ٹک ٹاکر صاحبہ نے جتنے بھی کام کیے، جتنے بھی لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے فوٹو سیشن کیے، وہ سارے بکواس ہے، وہ سارے جھوٹ ہیں، من گھڑ کہانیاں، سٹوریاں۔ میڈم انہوں نے آتے ہی آٹا دیا، آپ کو انہوں نے آٹا دیا، ہمیں پتہ ہے وہ آٹا جانوروں کو بھی ڈال لینا تو وہ بھی نہ کھائیں، جو وہ انسانوں کے لیے آٹا انہوں نے پرچیز کیا، اور پھر آج وہ اس حد پہ ہیں کہ وہ ڈیلر حضرات سے کہہ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اونے پونے میں یہ آٹا بکوا دیں۔ آٹا گوداموں میں پڑا ہے، آٹا بکے گا کیسے؟ یہ اپنے گھروں میں لے جائیں نا، اپنے سٹوریج کر لیں، اپنے لیے کھائیں نا۔ یہ خود تو یہ پاکستانی کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں، خود تو یہ پانی بھی باہر سے منگوا کے پیتے ہیں۔ آپ ان کو سلام پیش کریں، وہ 600 کا سوٹ پہن دیے، یہ چھوٹی بات ہے احسان صاحب، یہ بہت گری ہوئی بات ہے۔ اس میں بخاری سپوکسمین ہے وزیر اطلاعات، میں وہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ساری جھوٹ آپ انہیں اپریشیٹ کریں۔ جی کریں گے، جب وہ اس قابل ہوں گی تو ضرور کریں گے۔ ابھی تو ہمیں نہ وہ اس قابل نظر آتی ہیں اور نہ ہم ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی دوسری بات آپ کی رہ گئی کہ دیکھیں ابھی عید کی آمد ہے، آپ دیکھیں کہ سبزیوں کے دام آسمان کو چھونا شروع ہو گئے ہیں۔
वही प्याज, वही आलू, नहीं, वही सब्जी। पुलिस आपसे ईदी वसूल कर रही है, आपको मैं पुलिस उसी देगा। तरफ आ रही हूँ। ईदी देने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए। देखिए वो चीजें इतनी आसमान को छूना शुरू हो गई हैं कि जिसको हाथ में कंट्रोल करना भी मुश्किल है। अब बिल्कुल। इनकी टीमें, इनकी तंजीमें, इनकी जो बनी हुई है मुख्तलिफ अदारों को ये पैसा भी देते हैं और कहते हैं कि जाएं मार्केटों में और रेड देख के आए, और रेड देख के आके वो जो बताते हैं ऐसे सर मत आंखों पे आमीन कह के चुप कर जाते हैं। वो भी पैसे ये खुद लेते क्यों हैं। नहीं जाती? ये बिल्कुल वो तो ऐसे। बत्ता लेके आते हैं, वहां से हर दुकान पे उन्होंने बत्ता लगाया होता है। तू अगर 1000 ये ना देगा, कहें तू अगर 2000 देगा। वो अपने पापा को लेकर तंदूरों पे नहीं गई। जी बिल्कुल। खुद रोटियां- बिल्कुल। खुद रोटियां तंदूर वालों खरीदी से हैं, क्या खुद रोटियां दिया? खरीदी हैं। आसान साहब तंदूर वालों को क्या दिया? तंदूर वाले नान भाई आज भी रो रहे हैं। 24 रुपए ये दिए, उन्होंने 2 रोटी। बेड़ा गर्क कर दिया जब से वजीर आला पंजाब मरियम आई हैं। पाकिस्तान का जो पहले कुछ था वो ये आके गया, इन्होंने वो भी गया। और आने कोई तो- वाले कोई तो वक्त तारीफ में करे, आप उनकी तारीफ- देखेंगे कि पाकिस्तान तारीफ किस कुछ नीच होगी पे तो जा रहा है। तारीख वाला हमने तो बहुत सारी ऑप्शन दी, तारीख वाला काम करे, आपको कोई अच्छे नाम से कोई याद करे। रमजान पे मैंने बहुत इस बात पे इशू उठाया कि रमजान में आप आ चुकी हैं, अगर हमारा मैंडेट चोरी करने के बावजूद भी बुर्जुमान हो गई हैं, कुछ नेकी का काम कर दें, उन खवातीनों को जेलों से रिहा कर दे। हमारे बानिया पीटीआई को जो 11 महीने से बंदा सलासल है, उनको भी हमारे रिहा करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 9 मई खुद ही बना के और खुद ही ऊपर उसके ऊपर अब तो बेशर्मों की तरह ये डट चुके हैं कि और इसके ऊपर वो गुरजमान हो चुके हैं कि नहीं ये आपने ही किया है। बाद में इनके अंदर से ही लोग बोलते हैं यार अरे हाथ हौला रखो, कोई और काम नहीं कर लो। हम कर सकते हैं। बिलावल साहब ने क्या कहा? बिलावल साहब ने कहा पाकिस्तान को इमरान खान के अलावा और भी बड़े काम है। नहीं तारीफ हो सकती है, लेकिन इनके कपड़ों की हो सकती है, इनके जूतों की हो हाँ सकती है, जी। इनके बैग्स की हो सकती है, जिनकी प्राइस लाखों में, जी। हजारों 600 सौ में तो रुपए। नहीं 600 नहीं 6 लाख। हाँ 6 लाख तो हो सकती है, 20 लाख तो हो और सकती है। इनकी जो स्किन की सर्जरीज हैं उनकी तारीफ करें, आप इनके लाइफस्टाइल की तारीफ करें। हाँ, इनको और तो मेरा नानी ख्याल अम्मा है कि कोई दादी अम्मा ऐसी- ना के हाँ, इनको लेडी गर्ल के। अजय मैं अभी जो आप बात कर टिकटॉकर भी रही थी, कहते अभी जी, जो आप टिकटॉकर। बात कर रही जी। थी ना, देखो आप कल मोची दरवाजा में जलसा करने चाहती थी, जी आप गई भी वहां पे, आपने विजिट भी किया, बिल्कुल किया। लेकिन हर तरफ पुलिस के नाके बिल्कुल और हर तरफ से पकड़ दकड़, बिल्कुल, इसकी बुनियाद पर आप जलसा आपने वहाँ नहीं किया हमने। डिफेंस के एरिया में किया। जी अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इतनी आपको वो सहूलियत दे रहे हैं, जी बहुत तो ज्यादा। आप बहुत फिर उसके ज्यादा। बावजूद परेशानी का इजहार करती हैं। कौन के बारे में चंद अच्छे अल्फाज भी कहें। देखें हमने कन्वेंशन करना कहे था, तो हैं। हमारी आवाम निकली, भरपूर निकली, कन्वेंशन में शामिल हुई और हमने डट के मुकाबला किया और आवाम ने हमारा साथ दिया। इमरान खान का साथ देने के लिए वो जहन्नम में भी उनको हर कहा तरह से जाएगा ना तैयार कि है, आ हर जाओ, वक्त तैयार तो है, आवाम बिल्कुल, वहां हाँ, पहुंचेगी। बिल्कुल ऐसा। ये जितने मर्जी नाके लगा लें, हाँ। जितना नहीं तो फिर मर्जी हरासा कर लें। कन्वेंशन में क्या हुआ? आपके बंदे कन्वेंशन में पकड़ के बंदे ले गए, 22 पकड़े बंदे ले हमारे गए। लोग, कोई बात नहीं, आ जाएंगे बाहर को, लेकिन लोग खत्म आ नहीं जाते किए हैं, उन्होंने, हाँ, लोग कोई आ जाते उन्होंने हैं। जुर्म नहीं किया। बिल्कुल। अगर वो इमरान खान के जलसे में या कन्वेंशन में आते हैं तो ये पकड़ते हैं तो कोई बात नहीं है, ये तो सियासत का हुस्न है, ये हर पार्टी में इस तरह होता है। लेकिन इतना गिरा हुआ काम कोई किसी पार्टी ने भी नहीं किया नहीं जितना ये करना नून चाहिए, लीग करती बिल्कुल है। ऐसा ही है। इनको पता नहीं किस चीज का खौफ है, ये अपने आप का खौफ जो है वो पुलिस के जरिए लोगों को ट्रेड करवाना, लोगों को घरों से, अपनी और ये insecurities अपने आप को, मुझे नहीं समझ आती कि इनको अपने आप पे एतमाद नहीं, एतमाद वो कैसे होगा जब वो किसी के मैंडेट पे बैठे हुए हैं, किसी के खर्चे पे बैठे हुए हैं, वहां पे जितने खर्चे हो रहे हैं वो किसी का ये खा रहे हैं, सही ये बात है। अपना नहीं खा रहे इसीलिए क्योंकि इतने इनके पास insecure तो था ही हैं। कुछ नहीं। हाँ, ये तो ये बात। जब किसी का कोई खाते हैं तो शर्म से आंखें झुकी फिर वो रहती तो हैं। ये बदमाती पैदा होती है। तो बदइतमादी तो लोगों में हाँ। क्यों नहीं जाते? हाँ, देखे यही वजह एक है। एक जहाज में 200 बंदा यहाँ से बाहर टूरिस्ट जा रहा है। पाकिस्तान खुशहाल हो तो आप पूरी दुनिया में ट्रेवल करें। पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। एक गलतफहमी मैं पाकिस्तान की दूर कर जगह दूं। तो कोई देख नहीं सकता अब जो जो हालात जिसकी हैं। बात आप कर रहे हैं ना, वज़ीर-ए-आज़म 100 बंदा लेके गए ना, जी। वो 100 बंदा अपनी टिकट से गया जी, है, बल्कि जी, मुमकिन हो बिल्कुल। सकता उन्होंने इनकी टिकट ये भी खरीदी। हमारा ही खजाना खाली हुआ होगा हमारे साहब। पैसों से ही। ये हमारे इनके पैसों आने से ही जाने गए हैं, होंगे। हाँ। वजीर आजम साहब ने तो कभी खुद, पता आपको एहसान साहब, ये वजीर आजम साहब कहते थे अगर पाकिस्तान अवाम
को आटा नहीं मिलेगा, सस्ती रोटी नहीं मिलेगी, तो मैं कपड़े बेच के आवाम को रिलीफ दूंगा। आज वो कहाँ गए? वो बुर्जमान हो गए, वजीर आजम भी बन गए और भतीजी वजीर आला पंजाब भी बन गई। पाकिस्तान की मैशत कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान की महंगाई नहीं, वहाँ की वहाँ नहीं, ये डूब गई है, उससे भी बदतर हो चुकी है कि इसको संभालना मुश्किल हो गया। ब्रेक के बाद हम मोहतरमा शायदा जमील साहबा से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान की मईशत जो जुड़ी हुई है पाकिस्तान के किसानों से, पाकिस्तान के सनतकारों से, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन से, और वो जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी और अपने तमाम मामला गुजार रहे हैं, इस पे ये रोशनी डालेंगी ब्रेक के बाद। जी मोहतरमा शायदा जमील साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में ये जो मईशत है और एजुकेशन, ये दोनों जुड़े हुए हैं ना? जी बिल्कुल ऐसे। आप इसको किस निगाह से देखती हैं? पाकिस्तान का जो मईशत का निज़ाम है और जो एजुकेशन का निज़ाम है, ये दोनों को ही बेहतरी की ज़रूरत है। और अगर मईशत को मजबूत करना है तो तालीम के निज़ाम को भी मजबूत करना होगा, और गवर्नमेंट को चाहिए कि तालीम के निज़ाम को मजबूत करने के लिए भी इक़दाम करे, और क्योंकि मईशत और तालीम ये दोनों ही इंटरलिंक हैं। अच्छा जी, बात करें। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें ही इंटरलिंक हैं। तालीम और मईशत दोनों ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि तालीम को भी फ़रोग देने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए इक़दाम करें। वफाकी बजट में इस दफ़ा उन्होंने 58 अरब रुपए रखे, लेकिन वो रखे हैं ना, लेकिन हालांकि वफाक का एजुकेशन से क्या रखे जाते नहीं, हैं, वफाक का एजुकेशन से कोई तलक नहीं है जी, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होते ना। जहाँ पे इस्तेमाल होने चाहिए वहाँ इस्तेमाल हो तो नज़र भी आए। नहीं, तो जिस बात की आपने एजुकेशन के बारे में तैयारी रखी, वो आवाम को बताया ना, क्या कुछ कहना चाहती है आप? बस यही है कि तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने की बहुत शदीद ज़रूरत है। जो टीचर्स हैं उनको एजुकेट करें, सबसे पहले तो टीचर्स को एजुकेट करें, और जो घर की सतह पे जो माएँ हैं उनको एजुकेट करें। ज़ाहिर है वो एजुकेट होंगी तो वो अपने बच्चों को भी एजुकेशन में अच्छा लेके आगे चलेंगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि माओ को ऑनलाइन क्लासेस देनी चाहिए, टीचर्स को आप डिग्री होल्डर बनाएं, वो उनको ऐसी ऑनलाइन क्लासेस दें या ट्रेनिंग दें कि वो डिग्री ले के टीचिंग शुरू करें। और ऑटोमेटिक ही फिर ज़ाहिर है कि आपका जो पाकिस्तान की जो यूथ है वो जब एजुकेट होगी तो जाहिर है कि हर चीज़ के ऊपर अच्छा सकता। जी मैडम, आप ये बताएं मुझे। मैं पहले इन्हीं की बात का जवाब जरूर देना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उस मुल्क में होगी जहाँ पे कोई पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई सोच रहा होगा। पाकिस्तान के मफाद की तो कोई बात ही नहीं करता। यहाँ पे बिजनेस जो सारे बिजनेसमैन है वो लेके तो बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। आईओएम क्या कहते हैं, UMI, तो पता नहीं क्या क्या उनकी पॉलिसियां चल रही होती हैं। ये तो आप शहबाज शरीफ साहब की बड़ी अच्छी तकरीर हाँ जी आप IMU यकीन ना करें, तो वो जाके तो वहाँ सहन कर रहे हैं। पाकिस्तान का गरीब आदमी मर रहा है। चाइना में भी जाके ना इंग्लिश की तकरीर कर मैं उसी की बात कर रही हूँ, जो उनके अल्फाज थे मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ। किसी को पाकिस्तान में बच्चों की तालीम का फिक्र हो, मुझे बता दे पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमातें जितनी है, कभी किसी ने बात की? क्योंकि किसी को जरूरत ही नहीं है ना, किसी को ये है कि हमारा फंड कितना हमें दे दो, हमारा पैसा कितना बनता है हमें दे दो, हमारे MP MNA की तनख्वाह कितनी बनती है वो 1.5 से पहले हमारे अकाउंटों में चली जाए, कि हर बंदे को अपना अपना घर है। पाकिस्तान का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ। ये हालात भी है ना, पाकिस्तान की महंगाई के बारे में कोई नहीं सोचता, पाकिस्तान की तालीम के बारे में कोई नहीं सोचता, पाकिस्तान की मेडिसिन हेल्थ के शोबे को कौन देखता है? बीबी साहबा क्या कहती हैं, हमने हेल्थ सेंटर बिल्कुल फ्री कर दिए है, आपको बिजली बिल्कुल फ्री मिल रही है। ये तो इनके वो मनोसलवे तो इनके घरों में जाते हैं, हमारे घरों में तो नहीं आते। हमारे में तो 30-40 हजार रुपया गैस का बिल भेजा जाता है, भी ज्यादा पानी का बिल इतना। ये कौन सा दौर आ गया हमारे मुल्क में? ये जब से ये करप्शन करने वाले लोग खत्म नहीं होंगे,
जब ये अदारों को चलाने वाले लोग आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कुछ बेहतर नहीं होगा। अवाम को निकलना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा अवाम का है, नहीं तो ये अवाम चंद हुक्मरानों का नहीं है। अवाम की कोई सुनता भी तो नहीं है ना, नहीं सुनता है, अवाम बहुत मजबूत है, अवाम की आवाज जो है वो अरशे मोहल्ला पे जाती है। मुझे आप ये कहें आजाद कश्मीर में लोग निकले जी बिल्कुल। अब बिजली का वहाँ क्या यूनिट है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, आटा 2000 रुपए मन, 2000 रुपए मन क्या पंजाब में है? और निकले तो पंजाब के लोग मस्त हैं, मस्त है, सिंध के लोग मस्त हैं। करप्शन भी तो काम खराब करती है ना, चुप करा दिया जाता देखे है। अभी ये कहते हैं जी हमने ना बाहर जो स्मगल होने वाली चीजें हैं उनको बंद कर रहे हैं हम जी। जो खराबियां इनको हो रही थी ये उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये सारा कुछ छोड़ के अवाम को रिलीफ देने का कोई नहीं सोचता। मरियम साहब ही सोच लें, शहबाज शरीफ साहब भी सोच लें, अब तो सदर साहब जो है नवाज शरीफ साहब वो ही सोच लें। वो अपने बारे में सोचते हैं ना, लेकिन वो काम करेंगे, उनको सिर्फ सर दर्द लगी हुई है। IMF पैसे दे, हम बंडर बाट करे और लेके निकले, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम जीती है, जिए मरती है मरे, हर चीज पे डबल ट्रबल टैक्स लगा रहे हैं। आप देखें कि शॉर्पनर से लेके रबड़ तक टैक्स लग गए। यहाँ पे तो रिलीफ मिलनी चाहिए थी। अर्निंग है नहीं है, बिजनेस है नहीं है, कारोबार ठप पड़े हैं, तो टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं। एक बच्चा प्रेप में ये पहली जमात पर, उसके बच्चे की किताबें 16,000 की, तो बाकी घर कहाँ से चलना है? अगर 16,000 की प्रेप के बच्चे की किताबें हैं जो अच्छे स्कूल हैं। ये देखिए एजुकेशन तो एक बिजनेस है ना, ये तो थोड़ी है जायज थोड़ी लेते हैं, ये तो कारोबार है ना, कारोबार एजुकेशन तो एक कारोबार है। नहीं तो यहाँ पे प्राइवेट कारोबार है, तो सरकारी भी कौन से कारोबार नहीं है। प्राइवेट अच्छे स्कूल्स हैं, उनके यूनिफॉर्म्स भी उनके अपने होते हैं, उनका ब्रांड है, वहां से भी उन्होंने पैसा कमाना है, फीसों से भी पैसा कमाना है, हर चीज से। ये देखिए उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है। और पेरेंट्स अगर अच्छी एजुकेशन नहीं देते, वो तब जाहिर है उनका दिल करता है, वो तब अपने आप में होते हैं कि हम अपने बच्चों को ज्यादा अच्छा एजुकेट करें, लेकिन वो कर नहीं पाते, उनकी पॉकेट इतनी इजाजत नहीं और देती, हालात ही ऐसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। और नतीजा क्या है कि लोग ज़हनी मरीज बन रहे हैं, नफसियाती मरीज बन रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे, स्ट्रेस में हैं, सभी स्ट्रेस में हैं ओवरऑल। अब देखो ना, जिस तरह के जमात इस्लामी ने स्कूल बनाए हुए हैं और हर उस शोबे में काम कर जो भलाई का शोबा है, लेकिन इनको लोग वोट नहीं देते। इनको वोट अब जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, जिन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, उनको वोट देते। अब देखो इमरान खान ने शौकत खानम बनाए, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, अब इन्होंने क्या बनाया? जरदारी ने, नजर आता है जरदारी ने क्या बनाया? जाके देखें पता चलता है कितना काम किया हुआ, कितना पैसा लगाया हुआ, और 1 रुपया नहीं लेते। शौकत खानम हॉस्पिटल में मेरा जाना हुआ, वहां पे कोई मजबूर आदमी चला जाए, बता दे कि मेरे पास पैसा नहीं है, उससे 1 रुपया नहीं लेते, और बहुत पैसा लगा। और फिर बहुत VVIP हॉस्पिटल है जहाँ हर गरीब आदमी भी और अमीर आदमी भी। शहजाद बिल साहब, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप टूरिज्म के लिए काम कर रही हैं, काम करना चाहती हैं, तो जब कोई तरीकाकार ऐसा है कि ये जो जिन खवातीन की हम बात कर रहे हैं कि वो पैसे को जमा करा के वो भी टूर आपके साथ लगा सकें? नहीं, वो अभी जो हम बात करें वो यही कर रहे हैं ना कि पैसा हमारे पास थोड़ा होता है, करना हम बहुत कुछ चाहते हैं, अपने घरों को चलाना हमारे लिए इस वक्त मुश्किल हुआ हुआ है, और तफरी तो खैर बहुत दूर की बात है। और फिर वही मैं अभी बात करी थी कि फिर जो लेडीज़ हैं वो स्ट्रेस में चली जाती हैं, फैमिली जो है वो अपने नफसियाती मरीज लोग हो रहे हैं, क्योंकि जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, वो अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे। तो तफरी तो फिर बहुत, और ये गवर्नमेंट को चाहिए इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करे, इक़दामात करे, लेकिन वही बात है जो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारी बेसिक ज़रूरतों का किसी का ख्याल नहीं है, देखें तो ये तो बाकी बातें दूर। आप ये देखें, ये कल बाप बेटी दोनों मरी में इजलास कर रहे थे, खुद तो वो हर वक्त ठंडी जगह पे बैठे होते हैं, उनको क्या लगे कोई इंसान जी रहा है या मर रहा है, तो गरीब आदमी धूप में कश्मीर गए हुए थे, ऐसी कौन सी बात? नहीं, देखें वो हुक्मरान है, ये तो
ایک گھریلو عورت اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اسٹرگل کر رہی ہیں, وہ لوٹنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. اور ان کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا, وہ تو لوٹنے کے ایک ہاں. پلان بنانے کے لیے, اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اے سی بند کر کے وہاں جا کے کھلی فضاؤں میں جا کے پرسکون ہو کے اپنے آپ کو ریلیکس کر اپنے کے, بجٹ کو, ظاہر ہے جو بھی گئے ہیں مشکل سے اپنے بجٹ میں نکال کے گئے ہیں, جیسے یہ لوگ کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں ہمارے پیسے کو. ظاہر ہے یہ ہمارے پیسے کو محترمہ enjoy کر ایک رہے ہیں. اور بات ہے, اب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ 1 ڈش چلے گی. اچھا, وہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا 1 ڈش چلے گی, بالکل. لیکن درمیان میں جو آئے نا ان کے چچا جان, انہوں نے 1 ڈش سب گول. اب انہوں نے پھر اچھا اقدام کیا, اس کی تو کوئی تعریف کرے. نہیں 1 ڈش تو شروع سے ہی چل رہی ہے, یہ کون سا نیا کوئی منصوبہ دے دیا انہوں نے؟ 1 ڈش پہلے سے عمران خان صاحب سے اور بہت اس سے بھی پہلے سے چل رہی ہے. مریم نواز شریف صاحب نہیں چھوڑے, یہ کوئی منصوبہ نہیں ہے. وہ صرف تختیاں لگانے کے لیے اپنے آپ کو پرموٹ کروائی جا رہی ہے ہر جگہ پہ. میں کہتی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ بچوں کا ایکس رے کروانے کے لیے عورتیں ہاسپٹل جائے تو وہ مریم نواز کی تصویر آنی شروع ہو جائے. ایکس رے میں؟ ہاں جی, ایکس رے میں یہی رہ گیا ایک, باقی اور تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ اس کی تصویر نہیں لگی ہوئی. جو طاقت میں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں حیران ہوں نا کہ اتنی تصویر اور پبلسٹی کرنے کی کیا ضرورت ہے بی بی کو. اس کو یہ نہیں پتا کہ تمہیں عوام جانتی ہے جب سے تم آئی ہو باپ کی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے, اور تمہارا خواہش ہے کہ تم بھی ایک لیڈر بن جاؤ. لیکن وقت کی قید ہے, مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہوا. میں اور میرا پینل آپ سے اجازت لیتا ہے, تو آپ نے فیصلہ کر رہا ہے, میرے سوالات ان کے جوابات, اس کا فیصلہ کر رہا ہے آپ نے.